जो भी 15 साल नोटरी काम करे हैं उनका रिन्यूअल नहीं करेंगे बोल के प्रपोज्ड एक्ट में है। वो रिन्यूअल नहीं करने से हर नोटरी वो हैज कंप्लीटेड 15 years will be on the road. Even for politicians, they have to make an amendment. 15 years completion of the notary work, you become jobless person. If they are not considering this one, then definitely we will all will protest. So all the notaries will be nested. किसानों की अब इस बार वकीलों की है, इसके बाद डॉक्टर्स की होगी। इनका एक ही मंसूबा है कि लोग इस देश में गुलाम बनकर रहें। ये अमेंडमेंट जो है अगेंस्ट all the citizens also. In case if this passed by the parliament, definitely all the notaries will file a case before the Supreme Court. मुल्क भर में मरकजी हुकूमत की जानिब से बनाए जा रहे कवानीन व पॉलिसियों से कहीं किसान नाराज हैं तो कहीं मजदूर सड़कों पर एहतजाज करते नजर आ रहे हैं और कहीं लोग प्राइवेटाइजेशन से नाखुश हैं। अब वकीलों की बरादरी यानी नोटरी लॉयर्स मरकजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। नोटरी लॉयर्स का कहना है कि मोदी की हुकूमत हमारी रोजी रोटी छीनने पर आमादा है। कर्नाटका नोटरी लॉयर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान का कहना है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से नोटरी एक्ट 1992 में प्रपोज किए गए अमेंडमेंट के मुताबिक नोटरी लाइसेंस को सिर्फ 3 मरतबा रिन्यूअल किया जा सकता है, यानी नोटरी लॉयर्स सिर्फ 15 सालों तक प्रैक्टिस कर पाएंगे। जो भी 15 साल नोटरी काम करे हैं उनका रिन्यूअल नहीं करेंगे बोल के प्रपोज्ड एक्ट में है। वो रिन्यूअल नहीं करने से हर नोटरी वो हैज कंप्लीटेड 15 years विल बी ऑन द रोड और जो भी जॉबलेस पर्सन हो जाएगा और गवर्नमेंट से कुछ भी पैसा नहीं देते नोटरी को। इनफैक्ट वी गिव 1000 रुपीज एवरी रिन्यूअल। सो गवर्नमेंट की कौन सी फाइनेंशियल बर्डन नहीं, फिर भी हमारे को निकालना चाह रहे, इसका वजह क्लियर नहीं है। ये अमेंडमेंट जो है अगेंस्ट all the citizens also. If at all, if they are touching the notarial act, let them, all the profession, let them do. And let there be even for the doctor profession, chartered accountant, even for politicians, they have to make an amendment. Let them touch all the fields, politicians. See, even the 90 years also, they will, for 6 to 7 times, they will stand as for election and they will contest MLAs. और ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट फर्स्ट टाइम इतिहास में 1952 में एक्ट आया है। अब तक कौन सा गवर्नमेंट भी नोटरी के बारे में अभी नया अपॉइंटमेंट करे, रईसों लोगों को कौन सा गवर्नमेंट भी तकलीफ नहीं दिया, मगर ये गवर्नमेंट क्यों करना है, उसका इंटेंशन क्या है, क्लियर नहीं है। Amendment is section 52 of the Karnataka Central Act, Notary Act 52 of that is there. The proposal appointment is made by them, by the central government, is the notary certificate will be renewed for only 3 terms. So there is only 15 years. Thereafter it will be not renewed according to the proposal made by the central government. Amendment is brought to be likely to be brought. So for that we are objecting it, because now at the age of 15 years completion of the notary work, he becomes jobless person. Either he cannot do the notary work also, he cannot go to the court also, because he may lose the track of the advocate. So no client will come and give the case to the advocate. Notary and advocate become, because he is jobless person and he may have to suffer more and the entire family will be ruined. इस सिलसिले में नोटरी लॉयर्स की जानिब से मरकजी हुकूमत को ऑब्जेक्शंस भी रवाना किए गए हैं, इस मुतालबे के साथ कि नोटरी एक्ट में प्रपोज किए गए अमेंडमेंट्स पर रोक लगाई जाए। More employment, unemployment will be there if they touch the Moreover, they are not paying anything to us. We are doing our profession. Public is paying the money to us for their work, and we are charging the fees from them only. Government is not paying anything to us. No extra to government. Whether even though they are removing, sir, if they are not considering this one, then definitely we will all will protest. We are protesting it, seriously protesting it. गलत कॉमन सेंस से भी अगेंस्ट कॉमन सेंस। अब वो नोटरी 15 साल उन्होंने काम करके जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्यों बोले तो उन्होंने 25 years LLB हुए रहता है, 35 years में उन्होंने नोटरी बनता है, बिकॉज टू बिकम ए नोटरी मिनिमम प्रैक्टिस इज 10 years। और वहाँ से जो है उन्होंने 10 years बोले तो 15 साल बोले तो 50 years हुए रहता है। 50 years जब उन्होंने
15 साल कोर्ट को ही नहीं गया, कोर्ट को भी जाते हैं पूरे नोटरियाँ 99% नोटरी जो है फुल टाइम काम कर लिए रहते हैं। See, if the notary people is removed from like this after 15 years and all will be in the street. So all the notaries will be in the street. Because look at the family, they have the husband and wife or children who they are doing it out. So all will be, see, we are working with that and we are taking the money with that and we are surviving somewhere with that. So if such things go pass on the bill, then we will be in a very much in a distress. So kindly drop this bill. मोदी हुकूमत के प्रपोज करदा नोटरी एक्ट अमेंडमेंट के मुताल्लिक बात करते हुए कर्नाटका कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन निजामुद्दीन फौजदार ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अपनी पॉलिसियों के जरिए मुल्क के बाशिंदों को गुलाम बनाने की तैयारियां कर रही है। देखिए, आज अगर आप पिछले 7 साल में देखेंगे, मोदी सरकार का एक ही मंसूबा है कि लोगों की रोजी रोटी कैसे छीनी जा सकती है। उन्होंने पहले बैंक ऑफिसर्स की रोजी रोटी छीनने की कोशिश की, उसके बाद में किसानों की अब इस बार वकीलों की है, इसके बाद डॉक्टर्स की होगी। इनका एक ही मंसूबा है कि लोग इस देश में गुलाम बनकर रहें और मोदी नहीं चाहते कि किसी की तरक्की हो, किसी की उनकी ज़िंदगी में खुशी हो। वो चाहते हैं कि लोग परेशान रहे और उनके गुलाम बनकर रहें। इनकी नीतियों से ये देश को ये डुबा देंगे। इसके लिए हमें सब मिलकर खड़ा रहना है, इनका विरोध करना है। If the Notaries Act, this amendment is brought to effect, it is against the provisions of the Constitution of India, Article 14, 19 and 309 of the Constitution of India, seriously affect the rights of the individual or the person who is doing profession. So ultimately, in case if this passed by the Parliament, definitely all the notaries will file a case before the Supreme Court as well as a concerned High Court also against the provisions of the Amendment Act. So that we are intended to go to the court also. वो नोटरी काम चले गए बोल तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो मिनिमम उनको लाइफ का तकलीफ हो जाएगा। इसलिए ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट वापस लेना, विथड्रॉ करना बोल के हर नोटरी का इंडिया में जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका डिमांड है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से नोटरी एक्ट 1952 में लाए जा रहे मज़कूरा मुतनाज़िआ अमेंडमेंट से नोटरी लॉयर्स परेशान हैं और मोदी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। अब देखना यह होगा कि नोटरी लॉयर्स की जद्दोजहद कैसे रंग लाएगी। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।